Thank you everyone for joining. Hi Mickey, you're looking good. You are in Delhi. You are not in your city, Mumbai. Absolutely. Mickey, all yours. So, so Sanjeev, actually, I mean, this book wouldn't have been seriously possible. And this is not a Miss India speech. This is a truly coming from heart sentiment that this book wouldn't have been possible without your recipes and your nutritional inputs. Because today, what we eat is the most important element for transformation, upliftment, and I would say upregulating our immunity. So, thank you so much. And guys, once again, Sanjeev and myself, we go back a long, long way. And we thought, why not do something together for social impact and a purpose driven, meaningful assignment? And we thought of doing this book, Immunity Plus. So, Immunity Plus happens to be, I would say, if I would say Bible of immunity, it would be a figure of speech of hyperbole, but it's certainly a book, tell-all book on immunity, which tells you all about how to breathe, how to exercise, how to rest, how to meditate, and most importantly, what to eat. And where Sanjeev's contribution has been really monumental. And should you have any questions, we'll be happy to answer. Meanwhile, Sanjeev, if you can do the honors as well and tell the audience more about what you've contributed with. So first of all, thank you, Mickey, for inviting me for this session and to co-author this book. अच्छा, ये बुक के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, बुक को लॉन्च कर रहे हैं. कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? This is the book. This is Immunity Plus, Revitalize in 28 days. उल्टा दिखता हो तो कोई बात नहीं, मिरर इमेज मैं तो पढ़ लेता हूँ, मैं दोनों हाथ से लिख भी लेता हूँ, मैं दोनों कान से सुन भी लेता हूँ, दोनों आंखों से देख भी लेता हूँ, राइट? बहुत अच्छा, अच्छा, very good. ये पता नहीं, versatile. yeah, it is no, versatile नहीं होता, ऐसे ही है. फिर भी लोग कहते हैं कि पता नहीं जिंदगी में कितना मुश्किल होता है. So all the people, lovely people who are joining, first of all, if you have not ordered this book, Immunity Plus, this is what you need, because this is so immunity जो है, it's, I would say, overused word in last 1.5 years, but realism उसमें कैसे लेके आए, trust कैसे लेके आए, किस तरह से real immunity लेके आए, that is an attempt by Mickey and I, and this book, ये जो किताब है, इसके अंदर इसी तरह से कि immunity कैसे बढ़ाई जा सकती है आसान तरीके से. हम लोग जिंदगी को कोशिश करते हैं, हम लोग बड़े टारगेट्स रखते हैं कि इतना वजन कम कर देंगे, इतना ये करेंगे, बट इन रियल सेंस इफ यू वांट टू be healthy, feel healthy, live healthy, then immunity is something which is critical, because body में जो inflammation होती है, जिसकी वजह से immunity की problems हो सकती हैं, that you need to take care, and it can be simply taken care by हर मर्द का एक इलाज, नहीं, हर दर्द का एक इलाज, sorry, मर्द का नहीं, दर्द का एक इलाज is Immunity Plus book, and this has not only tips and tricks and techniques, but also क्या खाना चाहिए. तो खाते हैं, सिर्फ खाना ही नहीं खाते, बहुत सी चीजें खाते हैं, and that's where Mickey, I would say that what you have done, ये देखो कितना वैसे ही फर्क कैसे दिखता है. हम खाने को फोकस करते हैं तो चेहरा कैसा दिखता है, ये सांसों को भी फोकस करते हैं खाने के साथ में, एक्सरसाइज भी. तो ये जो ऊपर से लाइट गिर रही है ना इनके माथे पे, ये तेज है, right? Mickey, why don't you tell us little bit on कि आराम से, आसानी से immunity कैसे build कर सकते हैं? So yes, Sanjeev, most fundamental to life is our breath. तो हमने रेस पिक्चर तो देखी थी, उसमें गाना था रेस सांसों की. अगर आपकी सांसें रेस में लगी हुई है तो आपकी इम्यूनिटी कभी आगे नहीं बढ़ेगी. अगर आपकी सांसें थम के चल रही है, आराम से चल रही है, जिसको हम बोलते हैं आनंद पूर्वक, योग में उसको बोलते हैं आनंद पूर्वक, इन रिदम, इन फ्लो. तो ऑफ कोर्स व्हेन योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स एंड अवेयरनेस कंप्लीटली एक्सपैंडेड, योर एंडोक्राइन सिस्टम फ्लोज एंड सीक्रेट्स वेल, जिसकी वजह से हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो फ्लो करते हैं और हम रिलैक्स होते हैं. और बहुत सबसे मजेदार बात यह है कि हमारे एडेनॉइड्स में जो जर्म्स और वायरसेस लॉज्ड हैं,
वो सांस की प्रक्रिया से वो फ्लश आउट हो सकते हैं, हार्बर जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया। एंड जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर थोड़ी एलिवेट होती है, और जब हमारी बॉडी टेम्परेचर एलिवेट होती है तब जाके बैसिली का खात्मा होता है, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। तो इम्यूनिटी तब भी आगे बढ़ती है और हाइटन हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि सांसों के साथ साथ हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की प्रक्रिया चलती है, और हृदय से शब्द निकला है रिदम। तो जब वो हृदय का रिदम आ जाता है तो इम्यूनिटी का जो वर्तुल है हमारे बॉडी में वो ठीक ठाक चलने लगता है एक सिंक्रोनाइज्ड वे में। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसमें लयबद्धता आ जाती है, तालमेल हो जाता है, और हम कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहते, हम आराम में रहते हैं। और जब आराम में रहते हैं तो फ्लो अच्छा रहता है, हार्ट बीट अच्छी हो जाती है, और हमारे फेफड़े में पांच ऐसे पॉकेट्स हैं, वो हवा से भर जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि वाइटलिटी के लिए हमारे पांच फेफड़ों के जो कोने हैं वो भरने भी चाहिए और खाली भी होने चाहिए, और डायफ्राम की मूवमेंट पूरी होनी चाहिए ऊपर से नीचे। सो अच्छे योगी जो होते हैं, देयर डायफ्राम्स नॉर्मली मूव्स 12 to 13 centimeters, and this alone could be very vital for immunity. And Sanjeev, over to you as to how food adds value, and then I can come back. श्योर, थैंक यू। तो सस्ते नाम पे 250 रुपए की किताब आज की डेट में, मतलब इतनी अच्छी, इतनी मोटी किताब, 250 रुपीज, फैंटास्टिक, पब्लिश्ड। सो थैंक यू वेरी मच टू हार्पर कॉलिंस एंड पॉपुलर प्रकाशन फॉर पब्लिशिंग दिस बुक। Thank you to all my team who are, I would say, जिन्होंने मिकी और मिकी की टीम के साथ में कोऑर्डिनेट किया, सारी रेसिपीज टेस्ट की। कमिंग टू इम्यूनिटी, आई थिंक एज यू सेड, जैसे सांस लेना, सांस ठीक से लेना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और उससे आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है। तो खाने में मैं हमेशा कहता हूं कि खाना जो है उसमें ऐसा खाना अच्छा या खराब नहीं होता, इंसान अच्छे या खराब होते हैं। खाना अगर आप खा रहे हैं तो उसमें बेसिक चीजें जो हैं, खाना फ्रेश, लोकल एंड सीजनल। मैं सबसे पहले कहता हूं कि ये 3 चीजों को ख्याल रखें। खाना ताजा होना चाहिए, जो सीजन में है वो होना चाहिए, जो आपके पास उग रहा है वो खाना चाहिए। जितना दूर से खाना आएगा, जिंदगी से उतने दूर आप चले जाएंगे। So, खाने के जितना नजदीक, whatever is being grown closer to you, that is what you should embrace. That is the most important. And the other thing about food is कि अति हर चीज की खराब होती है. So, moderation is the key in everything. और खाने में भी वैसे नेचुरली कुछ जो चीजें हमारी, जैसे there is ancient wisdom that we have, हम बात करते हैं हल्दी की, let's say, मतलब आज मैं वही देख रहा था, करीब 7,000 सीरियस clinical papers, research papers have been written on all the benefits of turmeric. हल्दी जो हम रोज खाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो खाने के अंदर अब क्या हो गया, खाना हमने बनाना शुरू कर दिया, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, किसी में हल्दी नहीं डालते, राइट? सो थिंक अबाउट इट, व्हेन यू ईट पिज्जा, व्हेन यू ईट चाइनीज फूड, वो क्योंकि उसमें इंडियन स्पाइसेस वैसे नहीं पड़ते, तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता है। सो एंशंट जो विजडम है उसको ध्यान में रखें, किसी चीज की अति ना करें, और जो आपका फ्रेश, सीजनल एंड लोकल है वो आप ध्यान रखें। हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, कितना खाना है, दिस इज द बुक इम्यूनिटी प्लस। बिकॉज उसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। आप, आई वुड से मिकी, कि कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी जो अभी हम करें, लोग फॉलो कर सकें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। How would you say? तो ग्रेट। सो ज्यादातर अगर सांस लेते हैं तो नाक से अंदर और नाक से बाहर, मगर जब सांस फूलती हो तो हम मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे हमारा तनाव पहले जो घट सकता है और हम संतुलित हो सकते हैं। जैसे कि
Again, take a deep breath. Lift your chest up. Expand your chest, expand your stomach while you lift it, and let go. योग की एक परिभाषा है कि लेट इट बी, लेट इट गो। तो जब हम सांस लेट गो करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तनाव दूर हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। तो ये अगर आप 21 बार करें दिन में 4 बार, सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य देव के सामने, सूर्य की किरणों के सामने, जिससे आपके सेरोटोनिन गेट्स किक्ड इन, एंड व्हेन सेरोटोनिन गेट्स किक्ड इन योर इम्यूनिटी शूट्स अगेन। सो सुबह एक बार करें, दोपहर को एक बार खाने से पहले करें, जिससे आपकी पाचन शक्ति, आपकी जठर अग्नि तेज हो जाए, उत्तेजित हो जाए। तीसरी बात, सूर्यास्त के समय करें, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती हो तब आप गहरी सांस लें। और चौथी बार सोने से पहले यही सांस बहुत धीरे से करें, क्योंकि उस समय आपको सांस को उत्तेजित नहीं करना है, क्योंकि वी डोंट वांट ऊर्जा एट दैट टाइम, वी वांट टू लल डाउन एंड रिलैक्स। सिर्फ एक रिदम, हार्ट की रिदम बनी रहे। तो रात को जब करते हैं इट विल बी लाइक दिस। तो वहां पर ब्रीद आउट पे जोर नहीं डालना है, ब्रीद इन पे जोर नहीं डालना है। और जहां तक बात रही एक्सरसाइज की, तो साहब ने आपको अति की बात बताई, मैं गति की बात बताता हूं। सो स्पीड इज डेथ। अगर आपको प्रगति चाहिए तो गति से दूर रहिए, अगर आपको प्रगति चाहिए तो आप टॉर्टोइज बन जाइए। और जो भी एक्सरसाइज करते हैं आराम से, शांतिपूर्वक, आनंदमय होकर वही भावना से एक्सरसाइज करें। खाते वक्त और वर्कआउट करते वक्त आपकी जो भावना होती है उसकी ट्रांसलेशन से हमारी स्वास्थ्य बनती है। इट ट्रांसलेट्स इनटू हेल्थ। क्या बात है, क्या बात है। गति से दुर्गति हो सकती है, शरीर में गति नहीं चाहिए। इसलिए जब खाना खाते भी हैं, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से चबाना है। चबाने से सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको हम तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, इसलिए करते हैं। खाना जितनी देर तक हमारी बकल कैविटी में रहेगा, वहां से सीधा ब्लड में जाता है। सबसे बढ़िया। सो खाना डाइजेस्ट होने के लिए आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जब वहां से पहुंचने से पहले ही काफी न्यूट्रिएंट्स आपके सीधा खून में जा सकते हैं, और वो जाते हैं जो हमारा मुंह का पूरा हिस्सा है, बकल कैविटी बोलते हैं, उसमें चबाने से न्यूट्रिएंट रिलीज होंगे और सीधा ब्लड में जाते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। और कहते हैं ना कि why should you chew your food? Because your stomach has no teeth, right? So keep that in mind. कुछ रनिंग टिप्स देना चाहेंगे मिकी जी, पूछ रहे हैं कोई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मजे की बात यह है कि आई ऑलवेज टेल पीपल दैट व्हाट डू यू रन टुवर्ड्स एंड व्हाट डू यू रन अवे फ्रॉम। So I mean, I generally don't encourage people to overrun. I would say jog, because when you jog, there is a bounce. It is very gentle on you, and your circulation remains in control. Your heartbeats remain in control, and your breath remains contained. You don't run out of your breath. So you shouldn't do any such exercise where you pant and where you get breathless. So always do jogging with rhythmic breathing. My recommendations to people would be that when you jog, you must connect with the ecology of your environment. So look into the sky, try and catch the sound of the chirping of the birds, try and look into the greens of the trees and the lawns. And if at all you're fortunate enough to be in Bombay, near the ocean, or you're in villages near the lakes and rivers, nothing like it when you're running in the rich environment of nature, because elements energize you. Before food can nourish you, there is cosmic nutrition which nourishes you a lot. So when you connect with the elements, the same elements get triggered into you and they respond to your activity. May it be breathing, may it be exercise, may it be food, may it be rest. So do connect with nature. And of course, should you wish to listen to music, then I would say cacophony is not recommended during jogging, because you need to have soothing classical kind of music, which translates into harmonizing your hormones. Because good sound, I mean, today people are talking about, they're writing volumes of researches on sound therapies. And right from our ancient Sanatan Dharma tradition, जो मंदिर में घंटे रहते थे और जो हमारी मंदिर की घंटियां रहती थी,
उसके कुछ मायने हैं. So it dispels the negativity around you, creates space for positive creative energy to engulf you. So, I mean, be open to the sounds, be open to the visuals, be open to the fragrance of the environment. And if all your five senses, while you're jogging, they become one and united, then obviously you'll be connected with nature as you jog. So, well, that's Fantastic. about jogging. And when you jog, you breathe, you circulate, and I mean, the rest is, of course, the more and more you do it, the more and more you become healthy. You get healed, you get harmonized. Sorry about this interruption. Revitalize in 28 days. इसने पूछा मुझसे कि ये कहाँ पे मिल सकती है. बुक शॉप पे मिल सकती है, अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बड़े आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं, जल्दी से मिल जाएगी आपको. राइट शेफ बिल्कुल. और थैंक ये यू ढाई हितेश. और जो 250 रुपए की ये जो बुक है ना, हम लोग वैसे ही 10 रुपए का पान चबा के रोज फेंक देते हैं, थूक डालते हैं. तो रोज के अगर 7 रुपए हम बचा लें, तो 30 दिन में हमारे पास बुक खरीदने के पैसे शायद आ जाए. एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू द वैल्यू ऑफ द बुक, दैट फॉर 250 rupees, Chef Sanjeev Kapoor and myself and HarperCollins and Popular Prakashan, we are offering you infinite, invincible immunity. I mean, you can't do better than that. So I would say, normally we guys we don't pick up books for ourselves as much. We want to gift it to our beloved ones. And as much this book is for 8 to 80, I would suggest that we must gift it to our parents, we must gift it to our children, we must give the books to our in-laws if you want to get into their right books. लवली फैंटास्टिक. जल्दी ही सोच रहे हैं, पहले आप अंग्रेजी में लेंगे फिर हिंदी में लगाएंगे. राइट Well, Sanjeevi, there was a question there was interruption. Somebody asked on nutrients for or nourishment for asthma, and somebody also asked whether salads can you use baby spinach for salads. राइट. सो नेचुरली जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की जब हम बात करते हैं, आज लंच पे हमारी ये बात हो रही थी कि हमारे यहाँ पे जितने भी चीज़ें हम ये कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम उसमें जो गुडनेस है वो तो चीज़ों में रहती है, तो उसके साथ सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. सेफ्टी का मतलब वो साफ तरीके से कैसे साफ होंगे. राइट. सो वो साफ रखने के लिए आई वुड से कि अच्छी तरह से धोना उसको जरूरत है. जितने भी पत्ते हैं उसको अच्छी तरह से साफ करके धो के फिर उसका इस्तेमाल करें. कैन वी ईट देम एज सैलड वी रेगुलरली ईट. उसके अंदर जो छोटे पत्ते होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं. दे आर मतलब वो ज्यादा खाने में बाइट भी अच्छी होगी, स्वीटनेस भी अच्छी होगी. स्पिनिच का एक इनहेरेंट मेटालिक टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा कम होगा when it is baby spinach. तो पालक के पत्ते ले रहे हैं तो छोटे पत्ते आप जरूर लें पालक के. एंड लाइक एनी अदर ग्रीन जो सैलड लीव्स होती हैं, you can just add them. Great to have. Sanjeev, I wanted to ask you a question, and this is what very many of my clients normally do ask me. And since you champion this cause, let me ask you that can salads be by in itself a complete wholesome meal? And let's say for a vegetarian, what kind of combination of salad could become a complete nutrient fulfilled wholesome meal? राइट. तो आई वुड से, अच्छा सॉरी, आपने एक पहले एक सवाल अस्थमा का पूछा था वो. तो उसके अंदर टिपिकली अगर आप देखें तो जो चीजें लंग्स के लिए अच्छी होंगी वो आपके अस्थमा के लिए अच्छी होंगी. बट टिपिकली वी से विटामिन डी रिच जो फूड होते हैं, वी रिकमेंड दैट कैल्शियम रिच फूड आल्सो फॉर अस्थमा इज recommended. Milk and milk products are good. Eggs are considered very good. एक NAC करके होता है, नॉन एस्टाइल सेसिलिन होता है, जो that is something, but उसके खाने से ज़्यादा उसके supplements भी मिलते हैं. Coming to your question on salad, अगर पूरा खाना ही salad का है, तो I would say one will have to add a little bit of complexity to it, ताकि वो अपने आप में एक बैलेंस्ड मील बन जाए. तो मतलब इट शुड हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स.
तो और other micronutrients also. So it's a good idea if you are doing apart from leaves. So उसके साथ में आप कुछ जो चीजें हैं आप प्रोटीन वाली, जैसे चना बड़ा अच्छा जाता है उसके अंदर, राजमा बड़ा अच्छा जाता है, तो आप मिलेट्स अच्छे से उसके अंदर डाल सकते हैं. सो जिसमें कार्ब्स भी आ गए, जिसके प्रोटीन भी अच्छा आ गया. You add leaves to it, you add some good fatty acid to it, and you can add through जो seeds होते हैं और nuts होते हैं उसके साथ में आपने डाल दिया तो अच्छी क्वालिटी का फैट आ गया, प्रोटीन आ गया, कार्ब्स आ गए, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर आ जाते हैं. स्पेशली आप जब सीड्स एंड नट्स डालते हैं, सो यू आर टेकिंग केयर. थोड़े से आपने भून के उसके अंदर चिया सीड्स डाल दिए, फ्लैक्स सीड्स डाल दिए, आपने सेसमी सीड डाल दिए. So it becomes a complete meal. And again, Good, good. chew it well. Chew it well, right? So make it to make it a complete meal. Do it like that. हाँ, don't have salad with मतलब उसमें पता चला मेयोनीज भर के आपने ड्रेसिंग डाली हुई है. Fat is important. Again, अति नहीं करनी. हाँ, बिल्कुल. Sanjeev ji, one more thing for the audience sake, and this runs in my mind also, that can a soup become a wholesome meal, and what all should go into the soup for it to have all the nutrients and have become a meal by in itself? Sure. So again, soup can become a great same. जो चीजें हमने सैलेड में डालनी है वो सब सूप के अंदर भी डाल सकती है. Everything. Okay. Again, make a complete meal out of it. तो उसमें सारे nutrients का ख्याल रखना है. Only difference between salad and soup में जो सैलेड है वो आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सर्व करते हो, ठंडा सर्व करते हो, तो उसमें हीट नहीं लगती, तो हीट सेंसिटिव जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं. सूप जो आप ज्यादातर पकाते हैं तो उसमें हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपने कंप्लीट एक मील बनाया, दाल का सूप बनाया, सब्जियों के साथ में बनाया, राइट. ढेर सारी सब्जियां डाली, दाल के साथ में आपने उसका सूप बनाया. जैसे हमारे यहाँ मुल्तानी सूप है हम बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी गार्निश ब्राउन राइस की भी आपने डाल दी, तो यू हैव अ कंप्लीट वेजिटेबल्स भी हैं उसके अंदर, दाल भी है उसके अंदर में, थोड़ा सा राइस भी है, और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस उसके अंदर आपने डाल दिया. सो यू टेक केयर ऑफ लिटिल बिट ऑफ विटामिन सी का जो तड़का है वो आपने उसके अंदर डाल दिया. सो कीप दैट इन माइंड दैट ऑल दिस इज पॉसिबल. बट एक और जो चीज मैं बताना चाहूंगा कि फॉर इम्यूनिटी varied diet is important. जो गट माइक्रोबायोटा है, टू कीप इट हेल्दी, उसमें वेरिएशन की जरूरत होती है. जो जमीन के चीजें नीचे भी उगती हैं वो भी खानी चाहिए. आई नो अगर आपका रिलीजियस है, रिलीजन के हिसाब से आपने नहीं खानी है वो वाली चीजें, दैट इज अ डिफरेंट. बट अदर देन दैट, किसने बोला है कि ऐड रूपा नाबर, हाय रूपा, हाउ आर यू, ऐड एप्पल्स इन सूप. ऑफ कोर्स यू शुड ऐड एप्पल. डॉक्टर है बिल्कुल, डॉक्टर रूपा नाबर बिल्कुल वैसे ही बताएंगी. बहुत अच्छा, थैंक यू. हाउ कैन वी हैव स्पिनच रॉ एज जूस? सिर्फ मिक्सी के अंदर पत्ते डालें, थोड़ा सा पानी, नमक, नींबू, हो गया उसका. दैट्स इट. हमारे न्यूट्री ब्लेंड इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया है, राइट. That's a good one. That's a good one. So संजीव जी, वैसे खटास हमारी जिंदगी में हो तो अच्छी बात नहीं है, मगर खाने में आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है. That's very very nice. अच्छा, किसी को लौकी, पेठा, कद्दू से नफरत है, प्लीज इनको अच्छा बनाना हो रेसिपी तो हमें देखिए. बहुत अच्छा ये लौकी पेठा वगैरह है, इसको थोड़ा सा चने की दाल के साथ में बनाएं, बड़ियों के साथ में बनाएं तो बहुत बढ़िया लगता है. हमारे घर में इसको ग्रेट करके इसके कोफ्ते भी बनते हैं. इसके ग्रेट करके आप आटे के साथ मिला के इसके पराठे बना सकते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं. वाह वाह, वेरी गुड. I mean, मेरे मुंह से तो राल टपक रही है संजीव जी. I wish I can savor these things in your house someday. And और कोई सवाल कुछ बिल्कुल. Yeah, should anybody have some other questions? We are here. Some easy, healthy salad recipes. Naturally, बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं सैलेड में. जो चीजें सीजन में हो वो सब डालें, थोड़ा सा उसको ड्रेस करें और सोचें मत ज्यादा. ओवर इंटेलेक्चुअलाइज मत करें खाने को. जो बनेगा अच्छा बनेगा, वैसे ही सर्व कर दें, और अच्छा बाकियों को लग जाए
तो उसका 100% क्राइटेरिया ले लें, क्रेडिट ले लें. अगर नहीं पसंद आए तो बोले संजीव कपूर ने बोला था, पता नहीं क्या रेसिपी थी, मुझे ब्लेम करें, बट keep that in mind. So we need to breathe in clean air, and for that we need to breathe out a better quality air so that we don't make our environment toxic. You need to challenge your body to digest the food. So if senior citizens are eating well, but still if you feel that they are fragile, it's because there is no challenge to the body. You must have a calibrated challenge to the body so that the body creates a demand for the fuel and it absorbs the nutrients from the food that you eat. And as Sanjeev, brother Sanjeev says, that become a holy cow. If you want to become holy in health, become a holy cow. Chew it well, masticate it, absorb it, absorb it. बिल्कुल बिल्कुल फैंटास्टिक. अभी द बेस्ट थिंग इज अगर 28 दिन इसको फॉलो कर लिया आपको, तो अपने आप लाइफस्टाइल बन जाएगा, बिकॉज द बॉडी रिदम विल गेट इनटू समथिंग जो अपने आप हैबिट फॉर्मेट हो जाएगी एंड विल बिकम अ लाइफस्टाइल. So you do it once, and maybe after 6 months you go back and follow it for another 28 days, and you're done for life. That's what I believe, because that's how things are. Habit वही चीज की होती है जिसको हम बार बार करते हैं. तो एक बार 28 दिन की आपने हैबिट बनाई, उसके बाद में it will last for some more time, and then you have to reinforce it again, follow it after 6 months maybe, same book, and that's it. It's a life style change that would have been made. So simple thing, just follow the book. Immunity Plus, revitalize in 28 days. Available आपके बुक स्टोर्स में भी है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, Amazon पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, and it's available. Thank you. Take the liberty. One more thing Okay, to Smita. One last question. Okay, sorry. Yeah. Okay, sorry. One more thing to Smita, towards Smita, I would say that Smita, the book will be so intoxicating that everything about the book that you do will bring in such great feelings to you, will make you truly feel lighter, brighter, and if you do the exercise, of course, tighter as well. But the feel good factor is very intoxicating. Like people get hooked on to booze and drugs and smoke. I would say get hooked on to a good lifestyle. Good food, good workouts, good breath, good sleep, good meditation, good affirmations, being optimistic in life, and of course, subjecting yourself to as much nature around, be as much natural, and let the elements mingle, because the inner elements and the elements outside are no different. They are seeking to be one. You just simply allow them to become one. And then you will see that the wellness and well-being will grow within you. And as it grows, this will become your life, not your lifestyle. Once your immunity is good, it can take care of many problems. Thank you, Smita, for joining. Smita Bhatkal is asking, how can I make Dr. Mehta? How can she make it a lifestyle? 28 day. How can she make a lifestyle? So Smita, I mean, thank you so much for participating. Smita, we all human beings, we want to escape always, and we find great excuses to do things we don't want to do. Actually, we're not inclined to. If you love yourself a lot, if you love your universe, which means your family a lot, and if you love your outer circle a lot, which means your work relationships, your school friends, your college friends, etc. So all I ask people is to grab 5 minutes out of their day every day in the first month, and put those 5 minutes in your pocket and use those 5 minutes in the morning to stretch, contract, breathe, bounce, spot jog, etc. Circulate. Next month, try and grab 5 more minutes. That will make it 10. Over 4 months, you will have 20 minutes in your pocket. Over 6 months, you'll have 30 minutes in your pocket. And in a year, you will certainly have 60 minutes organized in your pocket, within your control, you being in charge, and you will be able to give this to yourself. So to make it a lifestyle, self-love is very important. आखिर में एक बात तो बनती है कि अगर लाइफ में होना है इम्यूनाइज्ड, तो इम्यूनिटी प्लस पढ़ के हो जाओ मिकी माउस. क्या बात है, उसके बिना तो नींद भी नहीं आती है पूरी, राइट? जब तक मिकी माउस नहीं होते हैं. Thank you, Mickey, and thank you to the publishers. Thank you, Sanjeev. Thank you so much, Sanjeev, so much.
Thank you, HarperCollins. Thank you, Harsha, Popular Prakash. God bless you all. Love you. See you guys soon.